हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फन क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में फन क्लासेस मंच पर स्वागत है। दोस्तों, फन क्लासेस आपका फिर से एक बार वेलकम, अभिवादन, वंदन करता है। दोस्तों, आज भी हम नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ ऐसा प्रॉपर टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले नहीं जाना होगा, क्योंकि दोस्तों टॉपिक ऐसा है जो कि आपको आपकी इनकम को प्रभावित करने वाला है। द टॉपिक विल अफेक्ट योर इनकम। दोस्तों, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेशनल इनकम। वे फैक्टर्स या वे कारक जो राष्ट्रीय आय को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। टू वे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं और क्या हम वो जाने हैं कि आपको किस ढंग से बताना है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि वो कौन से कारक हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको जानने से पहले एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या। व्हाट इज द नेशनल इनकम। दोस्तों, टू बिगिन विथ लेट अस बी फेमिलियर विद द ओरिजिन ऑफ इनकम। हाउ इज इनकम जनरेटेड? Friends, human wants to be satisfied through consumption of goods and services only. Right? A human being wants to be satisfied through the expenses which he have been made for consumption of goods and services. Next, therefore, production of goods and services is a must to meet unending wants of society. If human race has to survive, thus, broadly speaking, national income is a measure of value of production activity of a country. Then it is in the production process of goods and services that income is generated, or we can say production generates income. Remember, production is the result of combined efforts of four primary inputs, and these are land, labor, capital, enterprise. Whatever is produced jointly by factors of production, net value added at factor cost, the same gets distributed among them as factor income in the form of rent, wages, interest and profit. Friends, these are the part of national income. Now, since factor of production are paid their remuneration out of what they have produced, it is said that income is generated in the production process. This is how income is first generated in the production process and then distributed among factors owners for rendering productive services. That is the distribution of income. Income gives rise to expenditure for purchase of goods and services to satisfy wants. Friends, expenditure in turn
leads to further production. In this way, there are three phases in circular flow of national income: production phase, income phase, and expenditure phase. Friends, accordingly, national income can be defined in three different ways: as a flow of goods and services produced, as a flow of income distributed, and as a flow of expenditure. As described from production point of view, national income is the sum of money value of net flow of all the final goods and services produced by normal residents of a country during a period of account. National income is briefly a measure of production activity. If you want to say in short, the national income is briefly a measure of production activity in a country, in a financial year, in a fiscal year. Friends, from income point of view, Central Statistical Organization CSO has defined that national income is the sum of factor incomes earned by normal residents of a country in the form of rent, wages, interest, and profit in an accounting year. Friends, from expenditure point of view, Simon Kuznets defines that national product is the net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system into the hands of ultimate consumers, or into the net addition to the country's capital goods. Friends, it is calculated by adding up final consumption, expenditure, and final investment expenditure or final goods and services produced by normal residents of a country in an accounting year. In short, national income is either money value of all the final goods and services produced, or the sum total of all factors incomes earned, or the sum total of final expenditure plus investment expenditure. Friends, now we come on the factors affecting the national income. Friends, there are many factors, but we will know some which are very important in English and Hindi also. First of all, we will know these factors in Hindi. No. In English. Okay? Factors affecting national income. Several factors affect the national income of a country. Some of these we will know here. Friends, factors of production. Friends, normally the most efficient and richer the resources, higher will be the level of national income or GNP. It means if the level of resources used will be high, then the level of national income of GNP will be high also. Second is land. Resources like coal, like iron and timber are essential for heavy industries, so that they must be available and accessible. In other words, the geographical location of these natural resources affect the level of GNP. Then capital.
capital is generally determined by investment, and investment in turn depends on the other factors like profitability and political stability also. The next is labor and entrepreneur. The quality of productivity, the quality or productivity of human resources is more important than quantity. Friends, manpower, planning, and education affect the productivity and production capacity of an economy. Next is technology. Friends, this factor is more important for various nations with fewer natural resources. The development in technology is affected by the level of invention and innovation in production. Friends, the national factor is more important, that is governments. Friends, government can help to provide a favorable business environment for investment. It provides law and order regulation and the stability in government. Next is political stability. Friends, a stable economy and political system helps in appropriate allocation of resources. Wars, strikes, and social unrest will discourage investment and business activities. Friends, there are many more factors. Natural and human resources. The quantity and quality of a country's resources exert perhaps the most important influences on its national income. For example, fertile soil ready sources of power, easily worked mineral deposits, a favorable climate, navigable rivers, etc. will have a beneficial effect on a country's productive capacity. Next, capacity equipment may range from simple hand tools to the much up the date forms of industrial machinery. Generally, the achievements of an increasing output of goods is associated with increased investment in capital equipments. For example, a miner can extract a greater quantity of mineral resources from the earth with the aid of machinery than with only a pick and shovel. Thus, the effectiveness with which natural and human resources are used depends to a large extent on the capital equipment available. The size of the working population is determined by factors such as the age structure of the population and social attitudes. For example, the social attitudes towards the woman is important in this respect. If the community judges that woman's place is in the home, then the talents of many women may be wasted. The quality of the labor forces will depend partly on the innate intelligence of the people and partly on the skills acquired through education and training. Entrepreneur skill, that is, the ability to make decisions, calls for sound judgment and some courage. The availability of this skill will affect the use of resources and hence the size of the national income also.
Next is technical knowledge. Friends, new methods of production and new ways of utilization the resources may increase the output of goods and services. Friends, a community which is keen to try out new ideas and inventions in industry and commerce is likely to enjoy a higher standard of living than a country which is slow to adopt new ideas. Friends, next is political stability. Friends, political stability is essential for the expansion of business activities, where an internal revolution interferes with the production because they aid to normal commercial risks. Thus, peace and stable government promote confidence and encourage production. Next is terms of trade. Friends, trade benefits all countries which engage in it, but the degree of benefit enjoyed by a particular country will vary according to changes in the price levels at which it sells its exports and imports. Favorable terms of trade occur if the prices of imports fall relatively to the prices of exports goods. This means that a larger quantity of exports, hence more goods are available and national income is increased in positive way. Next, foreign investment. Friends, a net income from FDI means that the creditor country can obtain goods and services in return. Thus, if two countries have equal gross domestic products GDP, then the country with the more favorable net return from foreign investment will have the higher national income. Friends, these factors will in English which can be affect the national income in any level. Now, friends, we will know all factors in Hindi also, because there are many students which have Hindi mediums. Now, friends, we come on the topics which affect the नेशनल इनकम. दोस्तों, हम आज राष्ट्रीय आय के साथ साथ उन टॉपिक्स को, उन फैक्टर्स को, उन कारकों को जानेंगे जो कि राष्ट्रीय आय को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं. राष्ट्रीय आय से मतलब है किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में जितनी प्रोडक्शन हुआ, गुड्स प्रोडक्शन हुआ, जितना उत्पादन हुआ, जितनी सर्विसेज है, जितना निर्यात में से आयात घटाते हैं, जितना वेजेज हुआ, इन सबको मिला जो कुछ आता है वो नेशनल इनकम जीएनपी है. दोस्तों, आप जान लेते हैं कि कौन कौन से संसाधन हैं जो कि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं. दोस्तों, पहला है प्राकृतिक और मानव संसाधन. दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, किसी देश के संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता शायद उसकी राष्ट्रीय आय पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है. क्योंकि दोस्तों, यदि प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो प्रोडक्शन में उनका यूज नहीं होगा और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाएगी. और यदि मनुष्य नहीं हुआ, मानव संसाधन इफेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, उनका यूज कौन करेगा. प्रशिक्षित मानव संसाधन होना जरूरी है यदि हमें नेशनल इनकम में बढ़ोतरी करनी है तो दोस्तों, यदि उदाहरण के लिए उपजाऊ मिट्टी
बिजली के तैयार स्रोत, आसानी से काम किए जाने वाले खनिज भंडार, अनुकूल जलवायु और अनवरत बहने वाली नदियां आदि किसी देश की उत्पादक क्षमता पर लाभकारी प्रभावी डालेंगे। यदि ये सारे संसाधन पॉजिटिव रूप में है तो वे देश की इनकम पर पॉजिटिव असर डालेंगे और उसे बढ़ाएंगे। दोस्तों, पूंजीगत उपकरण सरल हाथ के औजारों से लेकर औद्योगिक मशीनरी के सबसे आधुनिक रूपों तक हो सकते हैं। दोस्तों, ये होना जरूरी है। आमतौर पर माल के बढ़ते उत्पादन की उपलब्धि पूंजीगत उपकरणों में बढ़े हुए निवेश से जुड़ी होती है। दोस्तों, जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूंजी का निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और हम जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही दिशा में हमने काम किया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी। तो ये दोस्तों कुछ फैक्टर्स भी हैं जो कि राष्ट्रीय आय की जो है उनको बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि हम उदाहरण लें तो यदि एक खनिज केवल एक कुदाल और फावड़े की तुलना में मशीनरी की सहायता से खनिज संसाधन निकालता है तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगी, क्योंकि मशीनरी विभिन्न टेक्नोलॉजी में से होकर गुजरी है और नवीन तकनीक के आधार पर वो खनन करती है। इस प्रकार जिस प्रभावशीलता के साथ प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग किया जाता है वह काफी हद तक उपलब्ध पूंजीगत उपकरणों पर निर्भर करता है, क्योंकि जितने अच्छे उपकरण होंगे, जितनी अच्छी मशीनरी होगी, प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होगा। नवीन मशीनरी बराबर हाई लेवल प्रोडक्शन, द रेट ऑफ प्रोडक्शन विल हाई। अब हम जान लेते हैं कि कार्यशील या कार्य जो करने वाली जनसंख्या उसका क्या है इसमें योगदान। दोस्तों, कार्यशील जनसंख्या का आकार जनसंख्या की आयु, संरचना और सामाजिक दृष्टिकोण जैसे कारकों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि हम यह माने कि महिला समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन साथ यह निर्णय ले कि महिला को घर की चार दीवारी पार करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें घर में ही रहना है, तो कई जो चीजें हैं वो सीमित हो जाएगी और उनकी प्रतिभा को बर्बाद कर देगी, जिसका सीधा असर देश की इनकम पर पड़ेगा। दोस्तों, श्रम शक्ति की गुणवत्ता आंशिक रूप से लोगों की जन्मजात बुद्धिमत्ता और आंशिक रूप से ही शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कौशल पर निर्भर करती है। उद्यमशीलता कौशल यानी निर्णय लेने की क्षमता के लिए सही निर्णय और कुछ साहस की आवश्यकता होती है, क्यों कहा गया है कि नो पेन नो गेन। तो दोस्तों, यदि हमें गेन करना है तो उसके लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, उसकी हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों, इस कौशल की उपलब्धता, संसाधनों के उपयोग और इसलिए राष्ट्रीय आय के आकार को प्रभावित करेगी। यदि हमने रिस्क उठाने का जज्बा ले लिया तो हम क्या करेंगे? उपलब्ध जो संसाधन है उनसे प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो हमें गेन भी ज्यादा होगा, गेन ज्यादा होगा तो इनकम देश की बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं तकनीकी ज्ञान का क्या समावेश कर सकते हैं हम, तकनीकी ज्ञान का क्या फायदा है। दोस्तों, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी या टेक्नोलॉजी वह ज्ञान है जो किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी कार्य को करने में, तेजी से करने में सक्षम है। दोस्तों, उत्पादन के नए तरीके और संशोधनों के उपयोगों के नए तरीके, अधिकाधिक उपयोग, संसाधनों का, जैसे कि जब एक पेड़ से माना छोटे पेड़ से 10 किताबें बनती थी, लेकिन अब मशीनरी के उपयोग से वही 50 बन रही है, तो फायदा है ना। तो दोस्तों, क्या है? उत्पादन के नए तरीके और संसाधनों के उपयोग के नए तरीके वस्तुओं के सेवाओं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एक समुदाय जो उद्योग और वाणिज्य में नए विचारों या आविष्कारों को आजमाने के लिए उत्सुक है, एक नई पीढ़ी जो अपने विचारों से सबको अवगत कराना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि इसके आधार पर यदि प्रोडक्शन किया जाए तो संभवतः है देश के लिए प्रभावशाली
और फायदेमंद रहेगा। वह उस देश की तुलना में उच्च जीवन स्तर का आनंद लेने की संभावना रखता है, जो नए विचारों को अपनाने की शक्ति तो रखता है लेकिन उसमें धीमा है, तो वह प्रोडक्शन कम हो। दोस्तों, राजनीतिक स्थिरता, दोस्तों किसी भी लोकतंत्र में, मैंने लोकतंत्र इसलिए कहा क्योंकि जो निरंकुश तंत्र है या राजतंत्र है, वहां पे हम अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं, हम लोगों के उच्च जीवन स्तर की बात नहीं कर सकते हैं, हम प्रति व्यक्ति आय की गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुबले हैं, सामाजिक दृष्टि से दुबले कुचले हैं, निर्धन हैं, क्योंकि निर्धनता विचारों क्या, क्योंकि उन पर अंकुश है राजतंत्र का, निरंकुश तंत्र का। जबकि लोकतंत्र में जो शासन है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। तो दोस्तों, जब राजनीतिक स्थिरता होती है तो व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिकीकरण के लिए शांत वातावरण मिलता है, सभी कार्यकारी वातावरण मिलता है। तो कार्यकारी वातावरण में कोई भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कोई भी व्यवसायिक जो क्रियाएं होगी वो अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी, निसंकोच होकर काम किया जाएगा कि भाई राजनीतिक स्थिरता है, हमें कोई चिंता नहीं लेगी। दोस्तों, होता क्या है, युद्ध और आंतरिक क्रांति उत्पादन में बाधा डालती है, अशांति हुई और थोड़ा सा ये लगा कि गवर्नमेंट लेकिन किंतु परंतु है तो भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, क्योंकि वे सामान्य वाणिज्यिक जोखिमों को बढ़ाते हैं, लोगों की आय जो है वो कम हो जाती है, रोज से संकुचित कर लेते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, तो हमें बचत करनी पड़ेगी, तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम होगी तो क्या होगा, व्यवसायिक गतिविधियां अपने आप कम हो जाएगी। इस प्रकार शांति और स्थिर सरकार आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है और उत्साह में भी वृद्धि लाती है, ताकि उस उत्साह के साथ उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों, व्यापार की शर्तें, दोस्तों व्यापार से उन सभी देशों को लाभ होता है जो उसमें शामिल है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, लेकिन किसी विशेष देश द्वारा प्राप्त लाभ की मात्रा उस मूल्य स्तर में परिवर्तन के अनुसार अलग अलग होगी जिस वह अपने निर्यात और आयात बेचता है। व्यापार की अनुकूल शर्तें तब होती है जब आयात की कीमतें निर्यात की गई वस्तु की कीमतों के सापेक्ष कम हो जाती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि निर्यात की मात्रा अधिक होती है, इसलिए अधिक सामान उपलब्ध होते हैं और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। निर्यात जितना अधिक, राष्ट्रीय आय में उतनी वृद्धि, क्योंकि निर्यात में से आयात को घटाएंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वही तो राष्ट्रीय आय होगी। दोस्तों, विदेशी निवेश जिसका कि काफी लंबे समय से, काफी दशकों से बोलबाला हो रहा है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनियोग, विदेशी निवेश। दोस्तों, विदेशी निवेश से शुद्ध आय का मतलब है कि ऋणदाता देश बदले में माल और सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यदि दो देशों का सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP बराबर है तो विदेशी निवेश से अधिक अनुकूल शुद्ध रिटर्न वाले देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, यदि उनके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा है और वो वस्तु का निर्यात करेंगे तो निर्यात उसी प्राइस में करेंगे जो कि वहां देश में कर रहे हैं। तो प्राइस देखिए, उत्पादन की कॉस्ट कम हुई क्योंकि डिमांड ज्यादा हुई, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो कॉस्ट कम हुई, लेकिन हमने रेट उसी पे दिया, तो क्या हुआ, FDI में भी फायदा, ब्याज में भी फायदा और इनकम में भी फायदा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि राष्ट्रीय आय को काफी हद तक प्रभावित करती है, और वो है राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, जैसे उत्पादन के कारक, जो प्रोडक्शन के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि संसाधन जितने अधिक कुशल और समृद्ध होंगे, राष्ट्रीय आय का GNP उतना ही अधिक। दोस्तों, जितना संसाधन उपयुक्त है, हाई लेवल का है, जितना अधिक उपयोग किया जाएगा
वह उतना ही अधिक देश इनकम की दृष्टि से आगे हो। इसके अलावा भूमि, देख दोस्तों, भूमि से कोयला भी निकलता है, लोहा भी निकलता है, तांबा भी निकलता है, लकड़ी जैसे संसाधन भी निकलता है। तो दोस्तों इन संसाधनों का हम कितना उपयोग कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं दोस्तों, यदि यह हमें नॉलेज हो जाए तो हम नेशनल इनकम को बढ़ाने में अपना सर्वस्व योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा पूंजी, देखिए दोस्तों, यह पूंजी की जो महिमा है ना, वो पूरा डिमांड के ऊपर डिपेंड है। दोस्तों एक देश में जितनी डिमांड होगी पूंजीगत वस्तुओं की, उतनी ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि सप्लाई करनी पड़ेगी। और जितना ज्यादा प्रोडक्शन, लागत में कमी लेकिन प्रॉफिट में वृद्धि, क्योंकि कॉस्टिंग जो है, चाहे वो लोडिंग हो, अनलोडिंग की हो, चाहे परिवहन की हो, ये सारी कम हो जाएगी। क्योंकि अब देखिए एग्जांपल लीजिए, पहले हम एक प्रोडक्ट को भेजने में 30 रुपए देते ट्रांसपोर्ट का, लेकिन आज ट्रांसपोर्ट वही है, 30 रुपए है। कितने ले रहे हैं? 30 रुपीज, लेकिन हम सामान 20 यूनिट्स भेज सकते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ बिहेवियरिंग लागत थी जो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिवाइड हो गई सबके अंदर, और कॉस्ट बहुत कम हो। कौन सी? परिवहन लागत कम हो, तो कैरिंग चार्ज कम हो, तो हमें फायदा हुआ पूंजीगत। दोस्तों होता क्या है, पूंजी का निर्धारण आमतौर पर निवेश से होता है। निवेश अन्य कारकों जैसे लाभप्रदता, राजनीतिक स्थिरता आदि पर निर्भर करता है। दोस्तों यदि देश में राजनीतिक स्थिरता है, यदि देश में सत्ताजनक स्थिरता है कि भैया 5 साल तक गवर्नमेंट कहीं नहीं जाने वाली, दोस्तों उस देश का जीडीपी और जीएनपी दोनों आसमान छूते होंगे। दोस्तों वहां पे किसी चीज का संकोच नहीं है, किसी चीज का डर भय नहीं है, क्योंकि सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती है। प्लस एक चीज हो रहा है, जितना सरल सरकारों द्वारा रवैया रखा जाएगा, उतना ही अधिक प्रोडक्शन होगा और उतना ही अधिक औद्योगिकरण होगा। दोस्तों होता क्या है, यदि सरकारों ने लाइसेंसिंग नीति को कड़ा कर दिया तो कुछ उद्योग तो वैसे ही बंद हो सकते हैं। ऋण नीति, यदि गवर्नमेंट ने आसान किस्तों पर, आसान ब्याज दरों पर ऋण दिया, औद्योगिकरण तेज होगा। औद्योगिकरण तेज मतलब नेशनल इनकम में अंततः फायदा ही फायदा। उसके बाद बात आती है श्रम और उद्यम। दोस्तों हमारे पास प्राकृतिक संसाधन कितने ही हो, कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी हो जो कि इन संसाधनों को निकालने में सक्षम है और बहुत अच्छा निकाल सकती है धरती में से, भूमि में से, पृथ्वी में से, लेकिन यदि उनका उपयोग करने वाला मानव संसाधन नहीं हुआ तो क्या काम का। इसलिए कौशल, दक्षता, प्रशिक्षित यह मानव संसाधन में होना चाहिए, तभी वह अधिक प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएगा, मन लगाकर काम कर पाएगा और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करता हुआ काम कर पाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा प्रौद्योगिकी, दोस्तों टेक्नोलॉजी का होना और टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना दोनों अलग अलग बात है। एक देश में टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसका यूज करना नहीं आता, तो क्या हम खाक करेंगे? क्या हमें उससे क्या फायदा होगा? दोस्तों टेक्नोलॉजी है, जरूरी है, लेकिन उसका यूज होना प्रोडक्टिविटी में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रौद्योगिकी जितनी सक्षम होगी और कार्य कुशल जितनी पब्लिक होगी जो प्रोडक्टिविटी जो इस टेक्नोलॉजी को जानता हो यूज करना, तो दोस्तों उस देश में प्रोडक्टिविटी रेट है वो हाई होगी। प्रोडक्टिविटी रेट इज हाई बराबर नेशनल इनकम इज। इसके अलावा गवर्नमेंट, दोस्तों सरकार निवेश के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान करे। यदि उसमें लचीला या इलेक्ट्रिसिटी रवैया अपनाए तो अच्छा है,
बहुत बढ़िया, ताकि औद्योगिक बस्तियां बस सके, औद्योगिकरण तेजी से बढ़ सके और इनकम में अपना योगदान दे सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। दोस्तों इसके अलावा है राजनीतिक स्थिरता, जिसकी हम बात कर रहे थे कि देश में यदि युद्ध, हड़ताल, सामाजिक अशांति यदि है तो उस देश में व्यावसायिक गतिविधियां सक्रिय रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सक्रिय रूप से कार्य करने का मतलब है कि वो जान जोखिम में नहीं डाले। नो पेन नो गेन का फॉर्मूला काम नहीं करेगी। उनको पता है कि कल को गवर्नमेंट चली गई तो हमारा कौन क्यों ना है। तो दोस्तों ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें ये बताती है कि यदि हमारे पास ये चीजें हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम देश के आय को बढ़ा सकते हैं और इन फैक्टर्स को भी कार्यकुशल बना सकते हैं। पहला तो यह है, भारत सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए विदेशी मुल्कों से आयात निर्यात पर शुल्क बढ़ाना चाहिए। दोस्तों उससे फायदा होगा, निर्यात ज्यादा होगा तो हमें अंततः फायदा है। तो क्या करना होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा है, भारत सरकार को त्योहारों पर जैसे दिवाली और होली पर पटाखे, इलेक्ट्रिक लड़ियां, गुलाल पिचकारियां इत्यादि चीजें भारत में निर्मित करने के लिए गरीबों और छोटे उद्योगों के लिए निवेश की व्यवस्था को प्रोत्साहन करना। और कैसे करेंगे, लचीली ऋण स्कीम और योजना जारी कर, कम ब्याज दर पर ऋण देकर, तभी वो क्या उत्साहित होंगे और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का जो स्वप्न है वो साकार होगा और देश नेशनल इनकम को देश में रखेगा, उसे आयात करने की जरूरत नहीं होगी और अंततः इनकम बढ़ेगी। उसके अलावा तीसरा है, चीनी उत्पादों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा, क्योंकि स्वदेश निर्मित चीजें भारतीयों द्वारा खरीदी जा सके और भारत का पैसा भारत में ही रहे। इससे कई फायदे हैं दोस्तों। हमारे कहावत है, सस्ता रोए 100 बार, महंगा रोए 1 बार। दोस्तों चीन से जो चीजें आती है सस्ती तो है, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि चीन की चीजें भैया चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, कोई गारंटी नहीं, कोई भी गारंटी। आप मार्केट से लाइट लाए दिवाली के लिए, चेक किया सब सही, लेकिन जिस दिन त्योहार के दिन लगाई सर पटक के बैठ गए, इन टाइम पर कुछ नहीं और चारों तरफ अंधेरा। तो क्या हम इसलिए लाए थे, जबकि यदि वही चीज आप इंडिया से खरीदते, हाँ 2 रुपए महंगी होगी क्योंकि सॉलिड होगी, उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी होगी और क्वालिटी वाली होगी, तो आप वो खरीदे, दादा खरीदे पोता बढ़ते वाली स्कीम होगी, वो लंबे समय तक यूज हो और पैसा कहाँ रहेगा, पैसा बात का बात कहीं दूसरी जगह नहीं देना। दोस्तों इसके अलावा आपको तो पता ही है कि चीन कितना महान है? चीन की महानता तो कोरोना के टाइम उसके दोस्तों ने और हमारे दुश्मनों ने देखी हो, कैसे उसने ठगा, लेकिन भारत प्रपंच में नहीं पड़ा, भारत उसके जाल में नहीं आया, उसको पता था ये कैसा है, कैसा धूर्त है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, राष्ट्रीय आय को यदि देश में रखना है तो देश में ही स्वदेशी निर्मित चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगला है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने के लिए एक वार्षिक सेमिनार गठित करनी चाहिए, जिसमें युवाओं को स्वयं का बिजनेस तथा अन्य प्राइवेट कंपनियों में प्लेसमेंट की प्रक्रिया को समझाया जाए, ताकि आम युवा नागरिक रोजगार के प्रति जागरूक हो सके, उन्हें पता लग सके कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। यदि दोस्तों एक चीज मान लीजिए, यदि युवाओं के दिमाग में राजनीतिक परिवेश या सरकारों के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो देश 101% प्रगति करेगा और इनकम में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि युवा शक्ति है, जिसके दिमाग में पॉजिटिविटी है तो सारे परिणाम पॉजिटिव, नेगेटिविटी आ गई तो कोई भी उसको पॉजिटिव नहीं कर सकता। यह है। इसके बाद जितने भी YouTube, TikTok, Instagram, ये तो ठीक है,
लेकिन कई अन्य फालतू और टाइम पास वाले एप्स जो हैं उन पर भारत में कोरिया और चीन की बढ़ती प्रतिबंध लगना चाहिए। भारत में जैसे कोरिया ने लगाया ना प्रतिबंध, वैसे ही लगना चाहिए, क्योंकि देश का युवा इन सभी एप्स के चक्कर में अपना वर्तमान और भविष्य दोनों खो रहा है। हाँ, कई है अच्छे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे फायदे के हैं क्योंकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं, लेकिन कई और हैं जो कि आपको माया जाल में फंसाते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, आपका पैसा ऐंठते हैं और आपके दिमाग को भी पागल कर देते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं। ऐसे पर प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, देश में किया भी गया है। जब से मोदी सरकार आई है उसने युवाओं के लिए सबसे पहला यही काम किया है, कम से कम 256 एप्स को बैन किया गया है देश के। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिल सके और स्थानीय गांव की प्रगति हो सके। दोस्तों, गांवों की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए हमें वहीं पर उद्योग धंधे विकसित करने पड़ेंगे, कुटीर या लघु उद्योग वहीं पर चलाने पड़ेंगे ताकि वो फल फूल सके और ग्रामीण परिवेश पुनः एक बार श्वास ले सके। इसके अलावा नेता और विधायकों को मिलने वाली पेंशन बंद होनी चाहिए क्योंकि सरकार को इसका भी वित्तीय भार प्रतिवर्ष झेलना पड़ता है। दोस्तों, ठीक है, उनको सैलरी दी जाए, लेकिन जो भत्ता मिलता है, पेंशन मिलती है बिना काम की, वो सारी बंद होनी चाहिए ताकि देश में जो पेंशन के रूप में वहां पैसा जा रहा है, मोटा पैसा खर्च हो रहा है, वो यहाँ योजनाओं पर खर्च हो, वो यहाँ प्रौद्योगिकी पर खर्च हो, वो यहाँ तकनीक पे खर्च हो, वो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर खर्च हो। दोस्तों, ये ऐसे कितने ही उपाय हैं जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर सकती है, बशर्ते एक पॉजिटिव सोच वाला नेता, एक पॉजिटिव सोच वाला जनसेवक यह दावा करे कि वह देश में राम राज्य के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, यह तस्वीर वर्तमान में साफ दिखाई दे रही है उनके विचारों से, उनके मनन से, उनके मंथन से कि वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल है और यह जो पीरियड है डेवलपमेंट का, नेशनल इनकम का गोल्डन पीरियड है क्योंकि नेशनल इनकम इस पीरियड में इस समय जितनी ज्यादा बढ़ोतरी करेगी शायद उतनी कभी नहीं की होगी। दोस्तों, यह इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि मन में यदि ठान ली तो जीत है और मान ली तो हार है। और दोस्तों, जो जनतंत्र के सिंहासन पर बैठा है, राम राज्य की परिकल्पना लिए दिमाग में 24 घंटे लगा रहता है, उसे ठान रखा है कि गरीबी को समूल नष्ट करना है और 17 जो SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको समय रहते और घोषणा भी कर दिया। आज एक नई सूचना हो रहा है कि उन्होंने कहा है 2045 तक उन सभी सोशल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल कर लिया जाएगा, किसी हद तक जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज से पहले क्या किसी ने SDG का नाम सुना था? क्या किसी ने UN के बारे में इतना सुना था? नहीं, क्योंकि उनको जनता को ठगने से फुर्सत नहीं थी। और आज का जो नेता है वह सभी में अपनी तस्वीर देखता है, वो देखता है कि सभी मेरे जैसे हैं और मैं सब जैसा हूं। मतलब वह सहकारिता की भावना से काम करता है। वो ये नहीं कहता कि जाओ काम करो, वो कहता है आओ काम करें। आओ काम करें में नेशनल इनकम की बढ़ोतरी है और जाओ काम करो में घूसखोरी, रिश्वतखोरी, समय की बर्बादी, अस्थिरता, ये तत्व है। दोस्तों, एक चीज और बता, यदि आपको संसाधनों का सही उपयोग करना है तो श्रमिकों के साथ लगकर काम करना, उसको आदेश की भाषा में नहीं, उनसे प्रेम की भाषा में बात करनी पड़ेगी।
उन्हें गले लगाना पड़ेगा, उनकी आस्था, श्रद्धा, उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों, यदि मानव संसाधन उच्च कोटि का है तो उस देश में कभी भी नेशनल इनकम का ग्राफ गिर नहीं सकता। और यही वजह है कि पिछले 2 दशकों से आप ग्राफ उठाकर देख लीजिए या प्रगति रिपोर्ट, प्रगति विवरण उठाकर देख लीजिए, नेशनल इनकम में वृद्धि हुई है, कमी कहीं नहीं मिली है, और निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है, और स्वदेशी वस्तुओं में प्रगति आई है। मेक इन इंडिया, ये तो वही था। फिर क्यों नहीं मेक इंडिया की बात की गई? फिर क्यों नहीं मेड इन इंडिया की बात की गई? क्यों नहीं स्वदेश की बात की गई? सब कहते हैं महात्मा गांधी के पथ प्रदर्शक हैं, हम महात्मा गांधी के पीछे चलते हैं। क्या स्वदेशी के मूल मंत्र को अपनाया? नहीं अपनाया। विदेशी मूल मंत्र को अपनाया, तभी तो उनके कपड़े बाहर से आते थे, और हमारे यहाँ पे धोने के लिए टिकिया भी नहीं थी कपड़े धोने की। लेकिन आज दोस्तों निर्यात होता है, न कि हम आयात करते हैं। दोस्तों, यही चीज आपको दर्शा देगी कि नेशनल इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, सोच जितना ऊपर होगी, नेशनल इनकम, प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट उतना ही तेज गति से होगी। दोस्तों, यदि जनता के दुख दर्द को समझकर कार्य किया जाएगा तो वह निश्चित ही फलप्रद होगा, क्योंकि उसमें जनता की भावना जुड़ी है, क्योंकि उसमें आम जन के अश्रु मिले हैं, क्योंकि उसमें आम जन की जिज्ञासा जुड़ी है, क्योंकि उसमें आम जन की मेहनत जुड़ी है, क्योंकि उसमें आम जन की महत्वाकांक्षाएं और आशाएं जुड़ी हुई है। उन्हें लगता है कि हमारा जीवन स्तर उच्च होगा, क्योंकि जन सेवक हमारे साथ है। दोस्तों, राम राज्य, हमने सोचा कि देश में राम राज्य आएगा आजादी के बाद, लेकिन हम और अधिक गर्त में जाते हैं, और मात्र पिछले 2 दशक ऐसे गए हैं कि हमने चैन की सांस ली होगी, और हमें लगने लगा है कि अब प्रगति का सूर्य उदय होगा, और अपनी किरणों के नीचे सभी को प्रकाशमान करता हुआ वह पथ प्रदर्शन करेगा, जिस पर चलकर हम नेशनल इनकम को बढ़ाने वाले मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने और आपने यह जाना कि नेशनल इनकम क्या है, राइट? और नेशनल इनकम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, हमने जान लिया कि उनको जो कि अंत तक प्रभावित कर सकते हैं राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों, इन फैक्टर्स को हम तो जान तो लिया, लेकिन हमारा योगदान इसमें कैसे होगा ये बताइए। मैं बता दूं, हमें यह पढ़ना पड़ेगा, पूरा आज के वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि जागृत करना, अवेयर करना हमारा काम था। जागरूक होकर अपनी क्षमता को पहचानना, अपने पुरुषत्व को पहचानना, पुरुषार्थ को पहचानना, और देश की प्रगति में अपना योगदान देना, और राम राज्य का जो जनसेवक है उसके साथ हाथ में हाथ मिलाकर यह कहना, भारत विजय भव। क्या बोलेंगे? भारत विजय भव का नारा देंगे तो भारत हर जगह अपना परचम फहराएगा। तो दोस्तों, ओलंपिक में भी परचम फहरा रहे हैं, देखिएगा ओलंपिक भी, लेकिन दूर मत जाइएगा, क्योंकि परम क्लासेस चैनल आपके लिए नई चीजें लेकर आता है, नित्य नए टॉपिक, नित्य नई जानकारियां। तो दोस्तों, देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल। हम मिलते हैं कल एक वादे के साथ, नई चीज लेके आएंगे, नए टॉपिक लेके आएंगे। देखते रहिएगा इसी समय, इसी मंच पर कल मिलते हैं। धन्यवाद।